Hello guys, welcome back to the channel. Another good day to make a video and analysis of stocks. कंटिन्यू करते हैं Q1 FY 26 का अर्निंग सीजन का सीरीज कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे दो कंपनीज है एक्चुअली विच बिलोंग टू दिस ट्रांसफॉर्मर सेक्टर and we will discuss the results of these two companies. The first company which comes into the picture is this one, which is this Taril Transformers and Rectifiers India. And if you remember, if you see here, this company has given last year guidance of around 2000 crores और इन लोगों ने वो guidance achieve किया. And after that they have given a guidance of around 3500 करोड़ का guidance दिया है, and which is like 75% growth year on year, which is a fantastic growth. एंड अभी इस साल देखना देखना है कि ये लोग वो गाइडेंस अचीव करते हैं क्या, और Q1 FY 26 में उन्होंने क्या नंबर पोस्ट किए. सो इफ यू सी हियर, सेल्स ग्रोथ ऑफ अराउंड 64% इन FY 26 Q1 में उन्होंने पोस्ट किया है, विच इज़ गुड. Sales of around 529 crores on consolidated basis. EBITDA margin is now stabilizing at around 19%, and someone in the con call asked whether this EBITDA margin is new normal or not. So they can say that you can consider that. सो जो लास्ट टाइम उन्होंने गाइडेंस दिया था कि वो 16-17% एबिटा मार्जिन करेंगे, परहैप्स दे विल कंटिन्यू टू मेंटेन दिस हाई एबिटा मार्जिन. उसका एक और रीज़न ये भी है कि आप अगर देखोगे ना, लास्ट कॉन कॉल में दे वर सेइंग दैट एट द एंड ऑफ FY 26 देयर अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक वुड बी अराउंड 8000 करोड़ का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक रहेगा. बट नाउ इन द रिसेंट कॉन कॉल दे सेड दैट देयर ऑर्डर बुक अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक इज अराउंड 5000 5,500 करोड़ का रहेगा. वो इसलिए रहेगा क्योंकि दे आर नॉट लुकिंग एट ग्रैबिंग ईच एंड एवरी ऑर्डर, बट दे आर लुकिंग एट ग्रैबिंग ए ऑर्डर which is margin accretive, which will add value to the financials of the company. And that's why they are saying that the EBITDA margin is on the higher side, which is north of 16-17%, and it seems that it is stabilizing at around 18-19%. So that is another good thing about this company, which is coming into the picture. Now if you see the PAT growth here, which is 235%, huge operating leverage, with PAT margin which is at around 12.26% year on year. It was like 9.72% in sorry, it was 6.4% in Q1. Now it is 12.26% का EBITDA मार्जिन यहाँ पे दिख रहा है. EPS ग्रोथ भी 60% का EPS ग्रोथ आया है. नाउ समवन से डायलूटेड पे करो या फिर एडजस्टेड पे करो, बट हमें यहाँ पे ना CA नहीं बनना है ये सब कैलकुलेशंस करके. व्हाट वी नीड टू सी इज दिस, दैट डायरेक्शन वाइज कंपनी कहाँ जा रही है. तो जो गाइडेंस बोला है उसकी तरफ जा रही है कंपनी, या उसको टाइम लगेगा, वो सब हमें यहाँ पे लॉजिकली यहाँ पे गेस करना है. दैट शुड बी आवर एम, नॉट टू बिकम अ CA बाय डूइंग दीज कैलकुलेशंस, राइट. सो if you see your capex, they last year I think उन्होंने QIP किया था, तो वही QIP का जो फंड है वही पड़ा हुआ है, and that they are utilizing in capacity expansion. I'll come to that capacity expansion वाला जो point है. So cumulatively, if I extrapolate that return on equity, it is now coming up at around 22% with the existing PAT if it is normalized to the whole year. गाइडेंस ऑलरेडी मैंने आपको बोला है. देयर लॉन्ग टर्म गाइडेंस विच इज नेक्स्ट 2 to 3 years, आई थिंक 3 years, इट इज़ अराउंड 1 बिलियन का रेवेन्यू करना है. विच अगर आप फॉरेक्स का जो फ्लक्चुएशन होता है वो हटा देंगे तो इट कम्स अराउंड 8500 करोड़. ये ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डॉलर वैल्यू. But you have to consider it as 8,500 crores, which is based upon the year in which they announced it, right? नाउ अब इन लोगों ने इस बार ना कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पे. सो दीज नंबर्स आर एम्प्टी राइट नाउ, बट एज सुन एज दीज नंबर्स they upload on their website, I'll update here. Now coming to the business of this company, what they have done in Q1, it's that their unexecuted order book stands at around 5200 करोड़, और न्यू ऑर्डर ऑलमोस्ट अराउंड 665 करोड़ के न्यू ऑर्डर्स उन्होंने ग्रैब किए हैं. This is orders in negotiation, so don't give too much weightage into that. It's just to show that there are tailwinds in this sector, और बहुत सारी कंपनीज इनको अप्रोच करती है. नाउ दे मेक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर से लेकर लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनका कोई ऑर्डर नहीं होता है. वो
लाइक इट्स लाइक रिटेल, रिटेल जैसा वो बेचते हैं, मतलब कैश एंड कैरी टाइप में वो होता है। तो जितना भी वोल्टेज से बढ़ता जाएगा ये बेसिकली, उतना मार्जिन वहाँ पे बढ़ता जाता है। सो डोंट गिव टू मच वेटेज टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू हियर। नाउ हियर द टू पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनके पास आई थिंक तीन फैसिलिटीज है, उसमें से जो इनिशियल फैसिलिटी था वो था चंगोदर फैसिलिटी। नाउ चंगोदर फैसिलिटी हैज एन कैपेसिटी ऑफ अराउंड 40,000 MVA। उसमें से ये लोग ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 60% यूटिलाइज किया था। नाउ दे एक्सपेंडेड दिस फैसिलिटी टू एडिशनल 15,000 MVA ऐड किया है, एंड नाउ दैट 15,000 MVA इज ऑपरेशनलाइज एज पर द कंपनी। जो उन्होंने लास्ट टाइम बोला था कि वो कर लेंगे ऑपरेशनलाइज इन Q1 FY26, विच दे डिड, और उसका रैंप अप अभी चल रहा है। सो दिस इज एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 15,000 MVA। एंड जो मोरैया का फैसिलिटी था उसमें ये लोग और कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं, विच इज एडिशन ऑफ 22,000 MVA। सो इफ यू ऐड ऑल दिस कैपेसिटीज, नाउ ये मोरैया का कब लाइव होगा, ये होगा, आप पकड़ लीजिए इसको, Q4 FY26 एज पर कंपनी इज Feb 26। तो उसका जो एग्जीक्यूशन मतलब जो रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट होगा, दैट इज समवेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द FY27। apart from that they got a standalone एक single order which is of around 16 million USD from JSW Energy। तो ये एक ऑर्डर मिला है, बहुत बड़ा ऑर्डर है ये। So these are the important points of this quarter, basically Q1 का जो उसमें जो ये important update है। Apart from that they are doing backward integration, that's why you are seeing this margin expansion also and the operating leverage also। Now just for the understanding, let's understand this calculation कि अगर वो लोग FY25 में उनका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था, इट वाज अराउंड 40,000, उसका ये लोग 60% यूटिलाइजेशन कर रहे थे। सो एक्चुअल कैपेसिटी विच वाज ऑन द ग्राउंड वाज अराउंड 24,000, एंड ऑन द बेसिस ऑफ 24,000 दे अचीव्ड द रेवेन्यू ऑफ अराउंड 2,000 crores in FY25। Now in FY26 they added this 15,000 capacity in the Changodar plant, which is now operational। If I add that, it becomes 55,000। अब ये 55,000 का वो लोग 80% करेंगे in FY26 as per their con call, which comes around 44,000। एंड इन 44,000 दे वांट टू अचीव द रेवेन्यू ऑफ अराउंड 3500। सो अगर हम लोग ये अल्फाबेटिकली और थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर इसको करके देखते हैं, तो एक्चुअल रेवेन्यू कम्स अराउंड 36,000, मतलब 3700 करोड़ ये लोग कर सकते हैं विद दिस कैपेसिटी, with 80% utilization per my calculation। And this could be a growth of around 83%। So what company right now projecting is growth of around 75%, but there is an upside possible here with 83% if they do if they properly utilize this 80% वाला capacity, right? तो ये कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज वन वन एक्चुअली केस है। आई एम नॉट सेइंग दिस विल हैपन, दिस इज जस्ट वन पॉसिबिलिटी एंड द वे ऑफ लुकिंग दिस नंबर। दे कुड डू लेस देन दैट ऑल्सो, बट वो तो पॉसिबिलिटी रहता ही है, बट हमें एक अपसाइड भी यहाँ पे देखना है। सो एंड इन FY27, if I add this 22,000 which will come from the Moraiya facility, then their total capacity comes around 77,000 MVA। अब अगर उसका 85% ये लोग यूटिलाइज करेंगे, लेट्स से इन FY27 फुल ईयर, एट द एंड ऑफ FY27 देयर रेवेन्यू शुड बी इन द रेंज ऑफ 5,200 से 5,500 करोड़ का ये हो सकता है। ठीक है, ये सीधा सीधा कैलकुलेशन है, यहाँ पे कोई ये आई वुड से इट्स अ लीनियर कैलकुलेशन, बट व्हेन अ कंपनी गेट्स एन ऑपरेटिंग लेवरेज ना, then this growth is exponential, perhaps। थोड़ा सा पुट इट इन अनदर वर्ड्स, पैट में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख सकता है। सो दिस जस्ट आई एम जस्ट स्पेक्युलेटिंग सम अपॉर्चुनिटीज, सम केस हियर with respect to Taril। So this is a growth of around 42% year on year। So 83%, 42% का यहाँ पे possibility है, but we need to track on this one। So if you see here now with respect to the valuation, now company has not done well, I mean in terms of the pricing। वो वही के वही वो है। So the forward P calculation hasn't changed much, it's still a 45 48 forward P है, with a growth rate of around 75% on yearly basis, annual basis और quarterly basis पे अभी ये almost like 64% का growth है। Still it is a good engine, good growth engine available at a lower P। So that's what I want to say here। Now moving on to the next company, uh,
दैट इज हिंद रेक्टिफायर्स, दिस इज अनदर कंपनी। नाउ अभी ये जो है इनका थोड़ा बिजनेस मॉडल अलग है। इफ यू सी हियर, दे प्रोवाइड दिस, दे केटर टू बेसिकली रेलवे एंड द प्राइवेट इंडस्ट्रीज बेसिकली। तो रेलवे में ये लोग ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर ट्रैक्शन ट्रैक्शन मोटर्स, कन्वर्टर्स, रेक्टिफायर्स एंड एचवीएसी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। एंड इंडस्ट्रियल्स को, जैसे प्राइवेट कंपनीज को, रेक्टिफायर्स, फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई एंड ये सब प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इनका अगर स्प्लिट देखोगे ना आप, तो 58% इज रेलवे ट्रांसफॉर्मर, देन 17% इज रेलवे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड 14% railway electronics. So almost 90% of the revenue is coming from the railway. So it's basically B2G kind of company है ना। और 11% वो आपका प्राइवेट प्लेयर से आता है, ऐसे इसको पकड़ के चलिए। सो देर आर टू प्लांट्स, सातपुर और सिन्नर, बोथ आर बेसिकली MIDCs in Nasik. And they're kind of expanding into that. They haven't given the detailed number of it, but they are expanding those plants also. So it's a गवर्नमेंट और प्राइवेट के बहुत सारे क्लाइंट्स है। मेजर मेजर क्लाइंट इज लाइक रेलवे एंड भेल। इफ यू सी हियर, इनका इनका जो नंबर्स थे FY 25 में, दे पोस्टेड अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 27%। EBITDA मार्जिन एक्सपेंडेड फ्रॉम 8.5 to 10%। पैट इज अराउंड 194% का ग्रोथ पैट में था, एंड 5.7% पैट मार्जिन था, एंड EPS ग्रोथ वाज अराउंड 188%। सो दैट वाज इम्प्रेसिव। 26% का ROE था। Now ROE in Q1 FY 26 on an annualized basis has become like 32%, which is impressive. And if you see here, the Q1 FY 26 का growth, sales growth is 58%. Now we'll dive more into this, and also we'll look at the forecast also. Then EBITDA margin again 10% to 11%, going in a good direction. PAT growth 85% with a 5.9% of पैट मार्जिन, विच इज लाइक इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द FY 25 का पूरे साल का जो है 5.7, नाउ इट इज 5.9%। EPS ग्रोथ इज ऑल्सो 87%। केपेक्स, आई थिंक प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स उन्होंने अनाउंस किया है, थ्रू दैट दे विल अर्न अराउंड 27 crores एंड दे विल पुट इनटू द कैपेसिटी एक्सपेंशन। सो दैट इज द मोटा मोटी स्टोरी ऑफ दिस हिंद रेक्टिफायर्स। यू अंडरस्टैंड द, एक्चुअली यू अंडरस्टूड द बिजनेस हियर। रेलवे वाला, तो रेलवे का अगर डिमांड समझना है, दे हैव अ स्लाइड नंबर 16 इन विच दे पोस्टेड दैट ये लोग जो इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स और ये जो ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह, वो तो लोकोमोटिव्स और MEMU जो होते हैं ना, उसमें यूज होता है। सो इफ यू सी द डिमांड ऑफ locomotives and MEMU is like picking up. It's up. It's on uptrend basically. That's why they are like bullish onto this one. And you're seeing that thing into the numbers also. But we need to look at the numbers in Q2, Q3, Q4 ये कैसे करता है, वो देखना ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक छोटा सा एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया है। इन 2025 ये 4 क्वार्टर्स हो गए आपके, तो ये सेल्स ग्रोथ था अराउंड 136 to 185 crores। इट्स सेम इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। नाउ इफ यू सी हियर ना, ये सेम ट्रेंड आपको टैरिल में भी दिखता है। जैसे Q1 इज, एक Q1 में जो नंबर है, इट विल बी लाइक लेसर देन द Q4 ऑफ आई मीन प्रीवियस क्वार्टर। ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर से Q1 का नंबर हमेशा कम रहता है, एंड देन दे इट पिकअप्स द ग्रोथ, एंड Q4 इज द हाईएस्ट। नाउ इफ यू सी हियर इन टैरिल ऑल्सो द सेम सिनारियो, 322 करोड़, देन 462, 560, 672 crores, which is the last quarter, right? Now again in Q1 it is 529 crores. So this is a kind of, एक ट्रेंड है यहाँ पे। नाउ द ट्रेंड इज ऑल्सो सेम यहाँ पे हिंद रेक्टिफायर्स में भी है। एंड इफ यू सी हियर, अगर वो लोग बोल रहे हैं कि वो कॉन कॉल में उन्होंने क्या बोला, हाँ कॉन कॉल इंटरेस्टिंग था, तो दे सेड someone was pressing onto the revenue growth expectations, like, and they said we'll grow minimum, भाई हम लोग 30% से ऊपर ही करेंगे। ठीक है, 30% के ऊपर करना है। सो लेट्स से 32-33% का अगर पकड़ते हैं, तो इफ आई डू दैट कैलकुलेशन, इट कम्स अराउंड 865 crores ऑफ द रेवेन्यू, विच इज लाइक आई थिंक 565 समथिंग कुछ तो किया, या 655 crores समथिंग कुछ तो किया है लास्ट ईयर में, विच इज अभी 865 करेंगे तो 33% का ग्रोथ है। नाउ इफ आई स्प्लिट दिस पर्टिकुलर रेवेन्यू इनटू क्वार्टर वाइज अगर हम देखते हैं, तो इस क्वार्टर में अराउंड 215 crores किया, विच इज 58% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। एंड सो इफ दे हैव टू अचीव दिस 33% का ग्रोथ, अगर यही मान के चलना है, तो ग्रोथ का जो सिनारियो है वो इस तरह रहेगा, 58%, 25%, 25%, 25%। दिस इज वेरी वेरी ब्रॉड लेवल फोरकास्टिंग मॉडल। आप इसमें ज़्यादा डिटेल में करने का जरूरत नहीं, बस समझ लोगे ट्रेंड कैसा रहने वाला है सेल्स का। नाउ
when this stock or when this company will get a traction, if they come up in the Q2 and they do growth which is like more than 58%, या फिर उसी की रेंज में अगर ये लोग करते, देन दिस होल इक्वेशन इट्स चेंजेस, बिकॉज ये नंबर जो है ना 865 ये ऊपर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप? हाँ, तो ये ही इंपॉर्टेंट चीज हमें देखना है टू 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 अंडरस्टैंड एंड स्टॉक्स में ट्रैक्शन कैसे आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हिंद रेक्टिफायर्स। नाउ इसका इसका वैल्यूएशन मैंने डिस्कस किया, आई थिंक नहीं किया। ओके, तो एक्सपेक्टेड पैट जो है नॉर्मलाइज अगर मैं करता हूँ तो इट कम्स अराउंड 50 to 60 crores, अज्यूमिंग 13 crores का पैट ये लोग करते हैं, और उसको अगर बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं देन वैल्यूएशन ऑब्वियसली विल चेंज, विल कीप ऑन चेंजिंग। So the forward P comes out around 65. It's a growth engine and a growth of around 58%. But अगर ये कंपेयर करते हैं टैरिल से, so still टैरिल is a winner here because आपका growth rate is almost like 64% से 75% का growth है, and forward P is also less. So टैरिल is still a winner here। ठीक है। शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक ऊपर नीचे भाग सकता है, तो उसको nobody can predict actually। Now, if you see here in the transformer sector, last time which we discussed another company which is Silchar Limited. We discussed that this company does thoughtful capex करते हैं, एकदम से capex नहीं करते हैं। They first go on 100% utilization करते हैं and then they think of capex। So उन्होंने 75% utilization कर लिया था, and maybe in the Q1 now they will tell us that what is the story now। तो ये कंपनी जो है ये ऑलमोस्ट लाइक इसका एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। बट एज फार एज आई रिमेंबर, इन टैरिल कॉनकॉल ऑल्सो एंड इन आई थिंक इसमें भी किसी ने इम्पैक्ट कुछ बोला नहीं है, जो ये टैरिफ का कुछ इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स पे इम्पैक्ट ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। तो सो दिस शुड बी सेफ गार्डेड। आई थिंक दिस वन, शिलचर का जो कॉनकॉल था लास्ट टाइम, उन्होंने भी यही बोला था कि उसमें कुछ है नहीं, इम्पैक्ट कुछ है नहीं टैरिफ का। ठीक है। नाउ उन्होंने गाइडेंस दिया था FY 26 का अराउंड 28% का गाइडेंस दिया था। ठीक है। तो ये गाइडेंस लाइक 28% ग्रोथ वर्सेस 75% ग्रोथ, ना व्हाट Hind Rectifier is doing is around 58% growth। Look at this। So that's why this company is way behind than the Taril and Hind Rectifier। So whenever the results of this company will come, I will update, and it will be interesting to see how this company does, right? So this is all about these three companies, mainly Hind Rectifiers and Taril. If you like this video, give it a like, share, and subscribe, and do share with your friends so that I'll get a motivation to make more and more videos like this one. So thank you very much for watching till then. I'll see you in the next video. Thank you so much.